Hello and welcome back once again to Steven Sir Makes It Easy, where me, Steven Sir, tries to make your life a little bit more simpler with concepts concerning accountancy and finance. Before I get started with the task for the day, very quickly a few reminders. You can connect with us on our Facebook page, our Instagram ID, as well as the Twitter handle. And the most important one is the Telegram channel given above. If you have not installed Telegram on your mobile phone and you are a subscriber of the channel, it's my request, please get connected to the Telegram channel above, join it, so that this particular Telegram channel is used for official communication to inform you, to update you about the lectures that will be premiered the next day, as well as the most important thing, the PDF of the question and answer, whatever is coached and tutored on this particular platform will be shared at the end of that particular chapter, so that you can download it and use it for your future reference basis. Also, if you do intend to purchase the textbook from which the necessary questions are explained during the various lectures, the purchase link is provided in the description of every lecture. And most importantly, if you have missed out the past tense, that is the last lecture, there is an I button given above. Please click it, watch that particular lecture, and then you can come here. Very importantly, at the end is, if you have not subscribed to our YouTube channel, please do make that a task for the day and subscribe to our channel, and together with that also press the bell icon so that Mr. YouTube notifies you about lectures which are uploaded on this particular platform. That's as far as the reminders are concerned. Let me get started with today's lecture. Welcome back once again to analysis of financial statement. Last time when I met you, there was one full question जो इलस्ट्रेशन में से मैंने सॉल्व किया था. आज इलस्ट्रेशन में से नहीं है बट प्रैक्टिस प्रॉब्लम में से है. अगेन अगर आप मुझे पूछते हो कि सर आज का क्वेश्चन जो ये नहीं है, ये लास्ट टाइम का क्वेश्चन था, दिस वाज फ्रॉम द इलस्ट्रेशन, जो ये है. ओके, फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ साक्षी लिमिटेड, प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट. इसका क्वेश्चन नंबर, इसका पेज नंबर आप कहाँ पे लिखते हो? यहाँ पे तो नहीं लिखते हैं, बट जो वीडियो है उसका जो टाइटल है, इन दैट we specify, and that is the reason we solve only one question, whether big or small, in one lecture. Many of you may think, sir कभी कभी lectures 20 मिनट के होते हैं, कभी कभी से 1 घंटा का होता है, ऐसा क्यों है? Because we are just doing one problem. Okay, वो टाइटल में हमको लिखना है ना clearly, so that if a student anywhere in Maharashtra, if will say page number, question number, उसको वो जल्दी मिल जाना चाहिए, और उसका गूगल सर्च, यूट्यूब सर्च में थोड़ा टाइम कम जाना चाहिए. दैट इज़ द रीज़न टाइटल में एक ही क्वेश्चन होता है, एंड इन द लेक्चर इररिस्पेक्टिव ऑफ द टाइम दैट टेक्स टू सॉल्व, एक ही क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है. सो दिस इज टुडेज क्वेश्चन. इट लुक्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वी हैव डन लास्ट टाइम. सोल्यूशन अलग नहीं है, बट लाइक इज माई हैबिट, लेट मी रिपीट व्हाट. Well, you all are bombarded with such a lot of online information that you may have forgotten what was done last time. So quickly, this is a vertical balance sheet. In this, there is a part of current asset and current liability. In the help of that, with the help of the knowledge of current asset and current liability, we find out cash flow from operating activities. I did my best, like I always say in this chapter. Who are you? You are a cashier. पीछे मेरे are dollars, but we will not think about dollars right now. We will think about, even though so many people think मेरे को तो डॉलर्स में कमाना है. ओके, नो प्रॉब्लम्स. राइट नाउ तो हम रुपीज़ तक रखेंगे. ओके, ये भी एक्सप्लेन किया गया था आपको लास्ट टाइम कि कैश फ्लो स्टेटमेंट 3 एक्टिविटीज़ में बटा हुआ है. पहला है ऑपरेटिंग एक्टिविटी, दूसरा है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, तीसरा है फाइनेंसिंग एक्टिविटी. दे ऑल मीन डिफरेंट थिंग्स. ऑपरेटिंग एक्टिविटी का मतलब था घर में, जो मैं हमेशा कहता हूँ ना, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे फ्राइडे सैटरडे, ओके, हर दिन के खर्चे, वो होता है ऑपरेटिंग एक्टिविटी. इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का मतलब क्या था? वेल, हर दिन का नहीं, कुछ सालों में एक बार. ओके, तो कोई बड़ा एसेट खरीदना या पुराने एसेट को बेच देना.
वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी हो जाता है। उसके अंदर जो गाड़ी है, टीवी है, रेफ्रिजरेटर है, वॉशिंग मशीन है, वो माइक्रोवेव है, वो सब आ सकता है। और फाइनेंसिंग एक्टिविटी का मतलब क्या था? वेल, फाइनेंसिंग एक्टिविटी मेंट मनी कमिंग इन, मनी गोइंग आउट, बट कनेक्टेड टू अ लोन। ओके, तो घर में कुछ इमरजेंसी आ गई, आपको एक्स्ट्रा पैसा चाहिए था, तो यू गो एंड टेक अ लोन फ्रॉम अ रिलेटिव या मे बी फ्रॉम अ मनी लेंडर। ये मेरे पीछे है, ओके, लोन से जुड़ी हुई चीज़ें। तो ये था, एंड देन आई एक्सप्लेन टू यू कि ये तो घर की परिस्थिति हो गई। कंपनी का ऑलमोस्ट सेम होता है, बट थोड़े वर्डिंग्स उनके अलग होते हैं। Behind me what you see is cash flow statement, and it is distributed into 3 parts: operating, investing and financing. I did one sum last time where I solved all the 3. I am doing another sum today where I will solve all the 3, but today's question is a lot more similar to a normal cash flow statement जो बड़े standards जो होते हैं ना, 13 standard, 14 standard, 15 standard, जब ये chapter होता है वहां पे पूछा जाता है। सो हाफ द टाइम टुडे विल गो इन मी एक्सप्लेनिंग टू यू कि व्हाट इज दिस क्वेश्चन, इसका मतलब क्या है। ओके, डोंट वरी, आई विल एक्सप्लेन टू यू, बट पहले लाइन, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग। फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ साक्षी लिमिटेड, कंपनी का नाम है साक्षी लिमिटेड। प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट। नाउ इफ यू लुक एट द क्वेश्चन, which obviously you are, you'll see 2 dates, 31/3/17, 31/3/18. Now please note within these 2 dates, इनके बीच में एक साल है, 31 मार्च 17, 31 मार्च 18, बीच में 17-18, 17-18 का ये साल है। कैश फ्लो स्टेटमेंट, ओके, सज्जन सजनी, ओके, दूसरों के भी सजनी, बनता है 1 साल के लिए, हमेशा 12 महीना। इन दिस प्रॉब्लम वो कौन सा साल है? 31 मार्च 2018 शुरुआत इस 31 मार्च 17, बट खत्म होते होते 31 मार्च 18 आता है। सो नॉर्मली अ कैश फ्लो इज ऑलवेज प्रिपेयर्ड फॉर 1 year. ओके, दिस इज ऑफ साक्षी लिमिटेड, इट इज फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018। आप बोलोगे सर फिर 17 का उन्होंने हमको नंबर्स क्यों दिया है? बिकॉज जब वो आपको 17 का और 18 का, 18 का नंबर्स देते हैं, आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट में पुलिस के डंडे अगर नहीं चाहिए, एक्सप्लेन करना है कि दोनों नंबर्स में जो तब्दीली है, चेंज, बदलाव क्यों हुआ, रीजन क्या था। लास्ट टाइम के मैंने लेक्चर में आपको डेफिनेटली समझाया, मैं झट से बता देता हूं। घर के अंदर अगर कोई भी चेंज होता है, बदलाव होता है, घर के अंदर क्या बदलाव होता है? देयर वर 6 डाइनिंग टेबल के आजू बाजू में 6 चेयर्स, ओके, एंड वो 6 चेयर ज्यादा थे डाइनिंग टेबल पे, डाइनिंग टेबल छोटा है, 4 ही चेयर्स वहां पे फिट हो सकते हैं। तो हर दिन कुछ ना कुछ झगड़ा होता था, तो पापा ने डिसाइड किया क्या, 2 चेयर हम बेच देते हैं, 2 चेयर हम बेच देते हैं, बेच दिया। ओके, किसी में भी कबाड़ वाले को बुलाया, ओके, या हो सकता है सम नेबर, ओके, रिक्वायर्ड, तो आपके पापा को पता चल गया एंड योर पापा वाज लाइक चलो यार बेच देते, 500 रुपए में बेच देते हैं। तो 2 चेयर उन्होंने बेच दिए। तो आई रिपीट, आपके आंखों के सामने, इन फ्रंट ऑफ यू, वन डे यू हैड 6 chairs and the other day you had 4 chairs. Immediately you go to your papa and ask, कुटे गेला? मेरे पापा से बेच दिया, 1000 रुपया मिल गया जेब में। So when the chairs furniture changes, automatically the effect is on cash, and you in this chapter are explaining that कैश पे क्या असर हुआ। रीजंस बहुत है, इनफैक्ट हर पॉइंट में एक रीजन है ऊपर। शेयर कैपिटल, क्रेडिट, वो लाइबिलिटी साइड है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इधर आओगे तो कैश, डेटर, स्टॉक, लैंड। यू हैव अबाउ इन द क्वेश्चन 2 बैलेंस शीट्स गिवन, 31 मार्च 17 एंड 31 मार्च 18। लास्ट ईयर की परिस्थिति, दिस ईयर की परिस्थिति, सिचुएशन, and in between those numbers there is a change. Share capital, look above. So at the beginning share capital was 2 lakh,
but at the end it has become 3 lakh. Why did it question, why did it increase by 1 lakh? You have to explain, वरना पुलिस का डंडा मिलेगा. You have to explain. You can't say ऊपर वाले ने. नो नो नो, एटलीस्ट अपने ये सब्जेक्ट में तो एक्सप्लेन आपको करना पड़ेगा. ओके, सो देर आर मेनी चेंजेस जो ऊपर दिखते हैं. डेटर इतना था इतना हो गया, स्टॉक इतना था इतना हो गया, लैंड इतना था इतना हो गया. ये इंक्रीज क्यों हुआ, ये डिक्रीज क्यों हो गया? हाँ तो एक्सप्लेन करो ना, एक्सप्लेन करो. सो आई रिपीट, दिस इज अ वेरी टिपिकल स्टाइल ऑफ अ क्वेश्चन जो कैश फ्लो स्टेटमेंट में आता है. दे गिव यू 2 बैलेंस शीट्स एंड दे हैव 2 नंबर्स, ओपनिंग क्लोजिंग, ओपनिंग क्लोजिंग. यू हैव टू एक्सप्लेन बीच में 10 रुपया, 12 रुपया, 2 रुपया, 20 रुपया किधर से आया और किधर गया. ओके, राइट नाउ व्हेन दैट फर्स्ट लाइन सेज प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट, तुम्हारा तैयारी में क्या रेडी होना चाहिए? 1 पेज, नॉर्मली 1 पेज. ओके, सो इन द बुक्स ऑफ साक्षी लिमिटेड कैश फ्लो स्टेटमेंट AS3, आई एम वेरी सॉरी नो, मुझको अभी स्ट्राइक हो रहा है अगर मैंने कभी बोला नहीं. मैंने मे बी फर्स्ट लेक्चर में बोला रहेगा. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3. व्हाट इज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड? रूल एंड रेगुलेशन. ओके, पूरे भारत देश में कोई भी कंपनी अगर एक कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाती है जो उनको बनाना अनिवार्य है, कंपलसरी है, वो कैसा बनाएगी, उसमें वो कौन से वर्डिंग्स का इस्तेमाल करेगी जो यहाँ पे है. आप बोलोगे नहीं सर आपके चैनल पे तो अलग बनता है. नहीं, ऐसा नहीं है. किसी के भी चैनल पे कोई भी अकाउंट्स के प्रोफेसर रहेंगे, दे विल प्रिपेयर इट इन द सेम मैनर. सो फर्स्ट लाइन, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, leave around 6 lines. Second, cash flow from investing activity, leave 3 lines. Third, cash flow from financing activity, leave 3 lines. So approximately you are at the bottom of the page. Last 3 line में this is what you write. Net blank, increase decrease आता है, increase or decrease in cash and cash equivalent. You may, like last lecture, if you did not attend, ask or wonder कि ये क्या है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट. कैश होता है बट कैश इक्विवेलेंट मतलब इक्वल टू कैश. तो इसमें राइट नाउ आप इतना ही याद रखो, कैश आता है, बैंक आता है क्योंकि बैंक से आप कैश निकाल सकते हो या बैंक में आप कैश डाल सकते हो. बैंक ओवरड्राफ्ट, बिकॉज बैंक ओवरड्राफ्ट इज अ परमिशन फ्रॉम द बैंक टू विदड्रॉ एक्स्ट्रा मनी, पॉकेट मनी जब जरूरत पड़ती है तो. सो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट मीन्स व्हाट? कैश, बैंक, बैंक ओवरड्राफ्ट. देयर कैन बी मोर थिंग्स बट राइट नाउ ये 3 से आपका काम चल जाएगा. देन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट द स्टार्ट एंड कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट द एंड. द लास्ट 2 लाइन्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट बिकॉज दे आर द ओपनिंग बैलेंस एंड दे आर द क्लोजिंग बैलेंस. लास्ट टाइम जो मैंने कहा था पुलिस ने पकड़ लिया, ओके, CID ने पकड़ा. होता है ना जब बड़ा फ्रॉड होता है तो द डिपार्टमेंट, ओके, द इकोनॉमिक ऑफेंस डिपार्टमेंट, ओके, तो वो दे स्पेसिफिक डिपार्टमेंट जो शेयर मार्केट में घपला होता है ना, तो उसके लिए वो बड़े लोगों को, छोटे नहीं बड़े लोगों को पकड़ के लेके जाते हैं और इंटरोगेट करते हैं, पूछते हैं ये तुम्हारे बैंक में देखो लेट मी एक्सप्लेन इट. ओके, हमने तुम्हारा बैलेंस शीट देखा, एसेट में लुक कैश लास्ट ईयर कितना था? 20,000 ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग देखो बाजू में 30,000. सो वो जो है ना इकोनॉमिक ऑफेंस डिपार्टमेंट का बड़ा ऑफिसर आस्किंग यू, तुम्हारे अकाउंट में हमको 20,000 दिखा स्टार्ट में, एंड में 30,000 हो गया. स्टार्ट में 20, सेकेंड लास्ट लाइन, एंड में 30. So that guy is asking you, explain to me madam or sir, how did 20 become 30? If you body weight was 20 kg and then after 1 year it became 30 kg, somebody is asking, अच्छा लॉकडाउन में खाने में तो कोई लॉकडाउन नहीं हो गया, अच्छा दबा के खाया, क्या क्या खाया. सो आपको अगर ना बोलना है
आप बोलोगे हाँ थोड़ा कुछ ज़्यादा हो गया, ये और वो थोड़ा कुछ ज़्यादा खा लिया हमने. सो आई रिपीट, उसी तरह ईओडी इकोनॉमिक ऑफेंस डिपार्टमेंट इज आस्किंग इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन 20,000 30 कैसे हो गया, इंक्रीज हुआ. हाँ तो वो जो नेट डैश है ना, इंक्रीज 10,000, वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज अभी का जो इसके बाद का पार्ट है ऑफ द रिमेनिंग लेक्चर, वी विल डिस्कस अ लॉट ऑफ थिंग्स, बट वी हैव टू अराइव एट, अपने प्लेन कहाँ पे लैंड होना चाहिए, अपनी गाड़ी कहाँ पे पहुंचनी चाहिए, 10,000. द पर्सन इन फ्रंट इज आस्किंग यू एक्सप्लेन टू मी 10,000 कैसे बढ़ा. हम लोग बोलेंगे देखो थोड़ा ऑपरेटिंग एक्टिविटी की वजह से, थोड़ा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी की वजह से, थोड़ा फाइनेंसिंग एक्टिविटी की वजह से. लेट मी थ्रू द क्वेश्चन एक्सप्लेन, बट राइट नाउ दिस हैज़ टू बी रेडी, वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, तो प्लीज़ गड़बड़ मत करना. एक पेज पे लेफ्ट पेज राइट पेज तुम्हारी मर्जी. विद दिस शॉर्टकट, करंट asset and liability, increase decrease, minus plus minus. It helps us in understanding कि current asset current liability में the changes that happen उसका cash पे क्या असर होता है. Okay, now some things that I read in the question will go to financing, some will go to investing, and some will go to operating activity. The very first thing after I have written opening and closing cash and the increase. Okay, now I have last lecture and आज we had increase, but there can be a decrease also. Okay, तो decrease रहेगा तो decrease भी explain करना पड़ेगा हमको in the question. So liability side last line, please see profit and loss. Last year आपका profit था 40,000, करंट ईयर आपका प्रॉफिट है 70,000, बिकॉज इट इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. सो ऑन द लाइबिलिटी साइड यू गेट प्रॉफिट. लास्ट ईयर योर प्रॉफिट वॉज 40,000, करंट ईयर इट इज 70,000. आई रिपीट, लास्ट ईयर 40, करंट ईयर 70. सो ये चेंज कितने का आपको दिखता है, 30,000. ये 3 उंगली ना, ये 3 उंगली. ओके, इट्स लिटिल डिफिकल्ट फॉर मी, बट ये 3 उंगली 30,000 इंक्रीज हो गया. कैसे? इट इज प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर. प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर, ये 1 साल की कहानी है ना. सो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हेल्प्स यू फाइंड ड्यूरिंग द ईयर कितना प्रॉफिट कमाया. अरे पहले 40 था, बाद में 70 हो गया, उसका डिफरेंस 30,000 इज द प्रॉफिट फॉर द ईयर, नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर. सो इन द फर्स्ट लाइन राइट अबाउट ऑपरेटिंग एक्टिविटी में नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर, डिफरेंस इन P&L, वो इट्स जस्ट टू एक्सप्लेन टू यू. ओके, वो जो येलो में है ना, जस्ट टू एक्सप्लेन टू यू 30,000. चलो ये हो गया. नाउ देर आर गोइंग टू बी मल्टीपल रीजन्स, तो वी हैव टू ट्राई टू फाइंड आउट एंड वी हैव टू ट्राई टू फिक्स दोज रीजन्स. ये वाला एक्टिविटी, वो वाला एक्टिविटी, वो वाला एक्टिविटी. फर्स्ट रीजन क्या? Share capital. Everyone, what is share capital? Please note, it is the money taken from shareholders by giving them shares. आपने शेयर दिया और आपने पैसा लिया, इस हाथ दो इस हाथ लो. ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी का एक रीजन होता है. क्या हो गया? पहले शेयर कैपिटल 2 लाख था, फिर 3 लाख हो गया. ओपनिंग में 2 लाख, क्लोजिंग में 3 लाख. 1 लाख, लाख नहीं लाख. ओके, 1 लाख. इंक्रीज कैसे हुआ? हमने शेयर्स बेचे. दैट इज टेक्निकल भाषा में लैंग्वेज, ऑफिशियल लैंग्वेज, ओके, कॉल्ड एज इशू ऑफ शेयर्स. आपने मार्केट में शेयर्स बेचे. अच्छा सर, वो अपना लोकल भाजी मार्केट नहीं, वो स्टॉक मार्केट होता है. वहाँ पे सिर्फ कंपनी लोग लेन देन करते हैं. सो आई रिपीट, व्हाट डिड दिस कंपनी साक्षी लिमिटेड डू? उन्होंने ड्यूरिंग 1 ईयर 17-18 पब्लिक को 1 लाख के शेयर्स बेचे. तो पब्लिक ने पैसा दिया, बिकॉज पब्लिक ने खरीदा ना शेयर्स. तो वो इशू ऑफ शेयर्स, वेरी इंपॉर्टेंट. व्हेन यू लुक, आप आपके जब बाइनोकुलर्स से
शेयर कैपिटल को देखते हो, व्हेन यू लुक एट इट, आपको क्या रियलाइज होना चाहिए? बिकॉज सर फ्रॉम वेयर आर यू सेइंग सर शेयर्स बेचा, सी दैट इज व्हाट एक एक्सपीरियंस आदमी देखने से ही समझ जाता है. आई नो दैट यू आर नॉट एक्सपीरियंस्ड, मैं हूं, तो इसके लिए मैं मेरा एक्सपीरियंस आपके साथ बांट रहा हूं. ओके, मेरा अनुभव मैं आपके साथ बांट रहा हूं. दैट व्हेन यू लुक एट शेयर कैपिटल, हाँ 2 लाख फिर 3 लाख, इसके अंदर क्या रहस्य छुपा है? इशू ऑफ शेयर्स. अगर जैसे मैंने आपको बोला ना, आपके घर में आपको अगर 3 मम्मी ने बनाए थे 3 भजिया, ओके, फिर एक ही बाकी है, तो व्हेन यू लुक एट द प्लेट, पहले 3 थे अभी 1 है, 2 का क्या हो गया? खाया, किसी ने खाया, कोई आया किचन में खा लिया. तो रिपीट, मतलब वो थिंकिंग होनी चाहिए, इतना बड़ा सीआईडी बनने का जरूरत नहीं है, बट यू शुड नो, अच्छा यार उतना तो हो गया रहेगा, तो उंदीर मामा चूहा नहीं आया रहेगा. ओके, वो पॉसिबल है, बट नॉर्मली जो बड़ा चूहा रहता है, ओके, कोई ना कोई बड़ा चूहा आके खा गया. हाँ, सो इट्स लाइक दैट. तो मेरे को शेयर कैपिटल दिखता है 2 लाख 3 लाख 1 लाख का क्या हो गया? इट इज सेल, इशू ऑफ शेयर्स. वो कहाँ पे लिखूँ मैं? आपके फाइनेंसिंग एक्टिविटी में, क्योंकि शेयर हमेशा फाइनेंस के साथ जुड़ा है. प्लीज नोट, इशू ऑफ शेयर कैपिटल, पैसा आता है 1 लाख, नेगेटिव नहीं है, पैसा आता है 1 लाख. अच्छा, अगला लेट्स सी, अगला क्या है? क्रेडिटर. एक क्रेडिटर इज करंट लाइबिलिटी. मैंने जो बोला कि आपने सुना, क्रेडिटर इज करंट लाइबिलिटी. ओके, क्या हो गया उसको? वो पहले 60 था, बाद में 90 हो गया. हाँ, तो इंक्रीज हो गया ना, 30,000 इंक्रीज हो गया 30,000. वे डू वी राइट इट? वी राइट इट इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ऊपर. इंपॉर्टेंट इज, बट व्हेन क्रेडिटर इंक्रीजेस 30,000, what happens to money? Does money come in, money go out? For that, you look at the shortcut above. See, this fits in this point. Increase in CL. When current liability goes up, if you see the sign plus, cash plus, हाँ तो plus 30,000, simple. 30,000, ज़्यादा सोचने का नहीं. एकदम बहुत ज़्यादा सोचोगे तो जो मेरे बालों का हालत हो चुका है ना, वैसे हालत हो जाएगा. टेंशन मत लो. ओके, very simple. I can see above current liability increase plus. Then profit and loss, we already discussed profit and loss. The increase is profit, and I wrote net profit for the year. Operating activity में लिखा. Come here, asset side. Cash beginning में 20, end में 30. I wrote, कब का लिखा रे बाबा? कब का लिखा? 20, 30, increase of 10. And now we are in the process of explaining, so that डंडा ना पड़े हमको कि ये 10,000 किधर से आया. सो डन. ओके, वी हैव डन. कुछ चीज़ें हमने पहले ही कर ली. कैश पहले ही लिख लिया, प्रॉफिट एंड लॉस पहले ही लिख लिया. अभी बाकी की चीज़ें हम देख रहे हैं. डीटर, रीड 1,40,000 बन गया 2,50,000. ओ 1,40,000 बिकेम 2,50,000, तो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया. इट इज़ अ करंट एसेट, तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में लिखना पड़ेगा. यस, लेट्स राइट. ऊपर देखो, इंक्रीज इन डेटा. बट देन जो इंक्रीज हो गया, 1 मिनट, इफ यू आर कंफ्यूज्ड, कितना इंक्रीज हो गया? अरे 1,40,000 अगर 2,50,000 बन जाता है. ओके, इट्स नॉट चुटकी बजा के, आपको डिफरेंस, गैप, द गैप इज ऑफ 1,10,000. द गैप इज ऑफ 1,10,000. तो आपको माइनस करके वो ढूंढना पड़ता है, माइनस करके. ओके, आई नो इट्स अ लॉट ईजियर इफ यू हैव गॉट अ कैलकुलेटर. दिस इज नॉट अ कैलकुलेटर, ये एक रिमोट है, बट आई एम जस्ट ट्राइंग टू से. ओके, इफ यू हैव गॉट अ डिजिटल डिवाइस, बट फॉर योर 12th स्टैंडर्ड अब तक तो अलाउड नहीं है, विच इज़ गुड. इन फ्यूचर इट विल बी अलाउड. यू हैव टू फाइंड आउट द डिफरेंस. अच्छा, तो 1,10,000 इज द डिफरेंस. नाउ व्हाट टू डू ऑफ दैट 1,10,000? इज इट अ प्लस और अ माइनस? कौन से कैटेगरी में इंक्रीज इन डेटर आता है? इफ यू सी अबाउट फर्स्ट लाइन, इंक्रीज इन करंट एसेट इज प्लस. आई एम सॉरी, क्यों? पहले मैंने बोला, आपने ध्यान दिया ऊपर, माइनस, तो फिर माइनस करना पड़ेगा. सो प्लीज नोटिस दैट
सब्ट्रैक्ट लिखा नहीं है, सब्ट्रैक्ट इट्स इन ब्रैकेट, ब्रैकेट का मतलब नेगेटिव, ब्रैकेट का मतलब नेगेटिव. ओके नेक्स्ट, डेटर के नीचे स्टॉक इट वाज 80 बन गया 70, तो दैट इज नॉट इंक्रीज, बराबर इंक्रीज नहीं है, डिक्रीज है, 10,000 का डिक्रीज. तो क्या लिखूं, ऑपरेटिंग एक्टिविटी दे, डिक्रीज इन स्टॉक. क्वेश्चन, बट वो 10,000 का कैश पे क्या असर हो गया रहेगा, इंक्रीज की डिक्रीज, अरे सोचने का नहीं, स्टीवन सर की तरह बाल बन जाएगा, टेंशन लेने का नहीं. ऊपर, when current asset decreases it is a plus, when current asset decreases it is a plus, so that is what I have done, plus 10,000. okay, so ऑपरेटिंग एक्टिविटी में कुछ लिख लिया, इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी में लिख लिया, ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में अब तक तो कुछ नहीं आया है, देख ले क्वेश्चन में, देख ले. लास्ट, लैंड कितना था 60 एंड देन 1,10,000, होल्ड ऑन. अच्छा, तो पहला मेरे पास लैंड 60,000 का था, आफ्टर 1 year इट बिकेम 1,10,000, तो इट मीन्स इट इंक्रीज्ड. पहले इतना लैंड और फिर इतना लैंड, इतना फिर इतना, लैंड कैसे बढ़ेगा. ओके, आप हथिया सकते हो लैंड गुंडागिरी करके. सोचो हम लोग गुंडागिरी नहीं कर रहे, हम लोग ने ईमानदारी से खरीदा होगा. क्या बोला मैंने, वी मस्ट हैव परचेज्ड इट, क्योंकि हमने परचेज किया तो लैंड साइज में इंक्रीज होगा. सो व्हाई विल लैंड, व्हाई विल लैंड, व्हेन यू लुक एट लैंड, देख रहे हो, हाँ 60 है फिर 1 लाख, सो 10 हो गया, कैसे बढ़ गया, परचेज, खरीदा, कानूनी तरीके से खरीदा. परचेस ऑफ लैंड, लैंड इज अ फिक्स्ड एसेट, सो द परचेस ऑफ लैंड यू हैव टू डू द डिटेक्टिव जॉब. वो जो आपका अनुभव है ना, परचेस ऑफ लैंड 50,000 नेगेटिव, क्यों, पैसा गया, पैसा गया. व्हेन यू लुक एट स्टॉक, इंक्रीज क्यों, डिक्रीज क्यों. व्हेन यू लुक एट फर्नीचर, इंक्रीज क्यों, डिक्रीज क्यों. मोटर कार, इंक्रीज क्यों, डिक्रीज क्यों. सो वो थोड़ा टाइम लगता है, बट एक एक्सपीरियंस आपको आ जाता है व्हेन वी डू 2-3 more प्रॉब्लम्स. राइट नाउ लैंड वॉज द लास्ट पॉइंट. अभी मेरे पास 3 आंसर्स आने चाहिए, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग. ऑपरेटिंग का आंसर मैं थोड़ा स्लोली बताता हूँ. 30 + 30 60, आई रिपीट माई सेल्फ, 30 + 30 60, एंड नीचे पॉजिटिव एक 10 है 70, देन -1,10,000. तो 70,000 में से -1,10,000 करोगे तो आपका और मेरा, हम दोनों का आंसर -40. सो आई रिपीट, ऑपरेटिंग एक्टिविटी की वजह से पैसा आया तो नहीं है, गया है, 40,000 नेगेटिव गया, होता है बिजनेस में. अच्छा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में तो -50 है, तो वही तो बाहर आएगा, -50. सो योर ऑपरेटिंग एक्टिविटी इज नेगेटिव, योर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी इज नेगेटिव. व्हाट अबाउट योर फाइनेंसिंग एक्टिविटी, 1 लाख, तो वो पॉजिटिव है, उसको बाहर डाल दो. यू हैव 3 आंसर्स, ऑपरेटिंग -40, इन्वेस्टिंग -50 एंड फाइनेंसिंग 1 लाख. ये तीनों का मिश्रण करो एंड यू शुड कम टू 10, 1 मिनट इधर 1000, और किधर नहीं जा सकते, you have to come to 10,000. Did we do that? Let's check it. -40 and -50 gives you -90. So your maths has to be quite good. Okay, अगर ऐसे सोचो ना, -4 -5 ऐड करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है ना, तो you will get 9, but the answer will be -9. ओके, कि बड़ा नंबर का साइन लागू होता है, एप्लीकेबल होता है. -4 -5 टोटल में 9 -9, यहाँ पे -90 प्लस 1 लाख. वो करोगे तो प्लस एंड माइनस इज माइनस, यू विल गेट 10,000. वेरी इंपॉर्टेंट, एंड द बिग नंबर साइन इज व्हाट, ये 1 लाख का, it is positive, so you will come at 10,000. So
-40 -60 plus 1 lakh gives you answer of 10,000. ये वर्टिकल है, आप चाहो तो हॉरिजॉन्टल में लिखो, हॉरिजॉन्टल -40 प्लस -60,000 plus 1 lakh, you will come to 10,000. Okay, it's maybe for some of you a little difficult, but वो ख्याल, वो thinking पैदा हो जाएगा. Don't worry about it. Again, today's question, which is a very typical normal cash flow statement. Okay, solution इस तरह बनता है. That's all I can say. Okay, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं. That's all I could explain to you about this particular problem. There are very similar 3 more problems remaining. I think so 3 or 2 problems. आने वाले lectures में थोड़ा थोड़ा करके वो repeat करूँगा so that you get good, better, best at cash flow statement. If all of this that was explained to you in the last approximately half an hour is understood, please do like. If you dislike, I don't mind, I should not. Okay, this is a platform जहाँ पे गुड बैड लाइक डिसलाइक दोनों चलता है, बट या रीज़न ज़रूर दे देना कि डिसलाइक क्यों किया, कौन सा पार्ट आपको नहीं समझा, सो दैट नेक्स्ट लेक्चर में थ्रू योर कमेंट्स, अगर वो कमेंट सेक्शन में आप डाउट डालते हो तो वो भी अच्छा है, क्योंकि आपका डाउट 10 लोगों का, 20 लोगों का डाउट हो सकता है, सभी का आंसर वो डाउट में सबको मिल जाएगा. एंड ऑल्सो द डिसलाइक का रीज़न आप दे सकते हो सो दैट आई कैन इम्प्रूव अपॉन दैट द नेक्स्ट टाइम आई टेक अ lecture. Till the time I meet again, if you have not subscribed, please do. If you have not pressed the bell icon, please do that. Share the videos with everyone that you know in your social media handles and on your WhatsApp different groups. Okay, अपना ख्याल रखना, बड़ों का, छोटों का, परिवार वालों का, सभी का ख्याल रखना. I will meet you very soon with the continuation of the next problem. Till the time we meet again, good day to all of you. God bless. Bye for now.